ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج جمعرات کا دن ہے. پروگرام کا دوسرا حصہ ہے تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت بشیر فاروقی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بالکل. اب دوستوں کو بتا دوں کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جب حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہوتے ہیں تو ہم استخارہ اور روحانی علاج اور کچھ اس طرح کی دینی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی پروگرام میں ہم انہی ساری چیزوں کے بارے میں ہی بات کریں گے اور آپ دوست ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے. یہ جو فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کاروبار کے حوالے سے, کسی کام کے حوالے سے, کسی نئے رشتے میں بندھنے کے حوالے سے, کچھ طبیعت کے صحت کے حوالے سے, دینی رہنمائی کے حوالے سے. آپ کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں. تو وہ آپ کا سوال لے لیا جائے گا. پھر ایک وقفے پہ جب ہم جائیں گے تو اس کا استخارہ وہ حضرت کریں گے اور پھر آپ تک جو ہے وہ واپس آنے کے فوراً بعد آپ کو بتا دیا جائے گا. تو سر وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, ویسے تو دنیا میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و جبر جو ہے وہ ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی ایک ایسی ہی صورتحال ہے. 38 دن ہو گئے ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, پریشانی کا عالم ہے. ہر پاکستانی ان کے درد کو محسوس کرتا ہے اور ان کے ساتھ مطلب ایک یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. دین اسلام کی روح سے آپ ذرا بتائیے کہ ایک مسلمان کو کیا حکم ہے اگر وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے یا اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اسے کس طرح مدد کرنی چاہیے, اپنی یا کسی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا موقع یا عنوان نہیں چھوڑا کہ قیامت تک اس کے لیے ہم پریشان ہو جائیں کہ ہم اس موقع پہ کیا کریں. جی ہاں. دیکھیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو شعبہ ہماری ریاست کے ذمہ داروں کا ہے, اس میں فوج بھی ہے, ایجنسیز بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, سیاستدان, یہ اپنے شعبے میں اپنی طرف سے اپنی دیانت میں لگے رہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میرے آقا نے جو دعائیں بتائی ہیں نا, جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں بعض لوگ دعاؤں پر بہت ہی کم انحصار کرتے ہیں. حضور نے کسی شعبے کی دعا نہیں چھوڑی. یہاں تک فرمایا, اے اللہ مجھے فقر سے, ذلت سے, مجھے فقر سے, ذلت سے, قلت سے, ظالم ہونے اور مظلوم ہونے سے بچا لے. تو مظلوم ہونا بھی مصیبت ہے, ظالم ہونا بھی مصیبت ہے. جی ہاں. ذلت بھی مصیبت ہے, قلت بھی مصیبت بے ہے, شک, اور فقر بھی مصیبت ہے. تو اس طرح آپ کا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. جیسے مجاہدین کو آپ مال دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا جو تلواریں تو انہوں نے لگائی ہوئی تھی لیکن ان کے پیٹ جو تھے ان کی پیٹھ سے ملے ہوئے تھے. بھوک اور افلاس کا. میرے آقا کا چہرہ اس وقت انتہائی غمگین ہو گیا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کون ان کی مدد کرتا ہے. ایک صحابی اٹھے اور وہ اپنے گھر سے جو کچھ تھا وہ مطلب اپنے کاندھے پر لاد کر آئے اور انہوں نے وہ مال وہاں گرا دیا. ان کا دیکھا دیکھی بے تحاشا سامان جمع ہو گیا. میرے آقا کا چہرہ اتنا چمکدار, ویسے ہی چمکدار تھا لیکن اتنا چمکدار ہو گیا کہ جیسے کہ مطلب میری کوئی آنکھ جھپک کر دیکھ نہیں سکتا تھا, آنکھ مطلب جمع کر نہیں دیکھ سکتا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ہمیں اصول دیا کہ جو مجاہدین ہیں ان کی مدد کی جائے. مگر مجاہدین تو آج کے دور میں تو وہ جو کردار ہے ایک نیشن میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو وہ فوج ہماری وہ کردار ادا کر رہی ہے جو آپ کو تو ہے نا موقع دیا نا کہ آپ ٹیکسز میں چوری نہ کریں بھائی, کیونکہ فوج کو جو ہے کس طرح چاہیے, فوج کیسے چلے گی. اب ٹیکسز پر آپ احتجاج کرتے ہیں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں, تو یہ تو بے انصافی ہے نا. یہ تو کریں نا. یعنی اس موقع پر تو کون سا یہ سوچ لے کہ یہ ٹیکسز ہمارے دینا, ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں 38 دن سے جو ہے مطلب محصور ہیں اور ان کو مطلب یعنی کہ اغوا کر لیا گیا ہے, گھروں میں بند کر دیا گیا ہے. تو ایسے حالات میں اگر ہم یہ ٹیکسز وغیرہ میں اگر آگے بڑھ جائیں تو کیا حرج ہے.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इनका सवाल लेते हैं और उसके बाद एक और सवाल मेरे ज़हन में है कुछ हिफाजत के हवाले से, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं लारेब बात कर रही हूँ। लारेब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लारेब बात कर रही हूँ। लारेब बेटा, आप प्लीज़ प्लीज़ हेलो? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हमारी बात हो सके, प्लीज़। जी, जी, अब बताइए कहाँ से कॉल किया आपने लारेब? मैंने कराची से मलीड से कॉल की है। ठीक है, कराची से आपने कॉल किया, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मुझे अपनी मम्मा के लिए इस्तिखारा करवाना है। उनका नाम बताइए। अपना नाम बताऊं? अपनी मम्मा का, जिनका इस्तिखारा करवाना है मम्मा का आपने। नाम नसरीन है। नसरीन है, क्या पूछना चाहती हैं उनके बारे में, क्या इस्तिखारा करवाना है? उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और डायबिटीज भी है। ठीक है, कब से है ये सब ऐसा? 2 साल हो गए डायबिटीज को, है ना? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम वक्फे के और बाद जब उनको वापस हार्ट का मसला भी है। अच्छा, हार्ट का इशू भी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। हम जब एक वक्फे पे जाएंगे, तो वक्फे से वापस आएंगे तो आपका सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ओके सर, रूहानी एतबार से हर इंसान की एक ख्वाहिश है, एक फितरी सी ख्वाहिश है, वो ये कि वो उसके पास एक ऐसी शील्ड हो कि जिससे उसकी हिफाजत हो सके, उस पर ना कोई बुरी नज़र से देख सके, ना उसके ऊपर कोई बुरे हालात आ सके, ना कोई ऐसे कोई बुरे मामलात हों, वो उन सब से आसानी तौर पे बच सके। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने कहा ना, कोई ऐसा शोबा ही नहीं छोड़ा हमारे प्यारे आका ने जिसने हमें रास्ते ना दिखाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मौत के अलावा अपनी जान में, अपने माल में, अपनी औलाद में कोई बुराई ना देखे, यही सवाल है ना आपका, बिल्कुल ऐसे। तो उसे चाहिए कि वो ये विर्द करे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या यूँ करे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ऐसी दुआ है, ये इतनी मजबूत दुआ है कि आका फरमाते हैं कि ये दुआ जो है, इंसान अपनी जान में, अपने माल में, अपनी औलाद में कोई बुराई नहीं देखेगा सिवाय मौत के। वाह सुभान अल्लाह। तो सदका इसके साथ साथ वो कितनी अहम चीज़ है? सर वो उसका भी अपना बहुत बड़ा मर्तबा है। आका फरमाते हैं सदका मौत को भी टाल देता है, बुरी मौत को टाल देता है और 70 शर के दरवाजे बंद कर देता है। जैसे हमने पहले भी आपसे गुफ्तगू की थी कि अगर 70 आदमी गन लेकर किसी लिए खड़े हों कि ये बंदा निकलेगा उसको मार देंगे, 70 के 70 अफराद की गोली जो चलेगी नहीं अगर उसने सदका दे दिया होगा। जैसा कि एक वाक़या आपको सुनाऊं, एक परिंदे ने अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं कि एक परिंदे का नाम दिया हमारे आका ने, उसने अल्लाह ताला से ये अर्ज़ की कि हमारे एक शख्स से हमारे बच्चे या अंडे जो है वो चुरा लेता है। तो अल्लाह ताला से बराह रास्त उस परिंदे ने बात की, परिंदे ने, ये हुजूर फरमाते हैं। तो प्यारा का फरमाते हैं अल्लाह ताला ने उनको इस बात का यकीन दिलाया कि आइंदा ये करेगा तो मर जाएगा, हलाक हो जाएगा। अब ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है। तो परिंदों को भी खुदा ने ज़ाहिर सी बात। तो उसने यही किया लेकिन वो नहीं मरा। ओके, तो फिर परिंदे ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह ये क्या हो गया, तूने कहा था कि मर जाएगा, ये कैसे बच गया? कि इसने आज ये काम करने से पहले एक रोटी एक साहिब को दे दी थी। ऐ मेरी मखलूक, जिस दिन मेरा बंदा सदका करता है उस दिन मैं उसको हलाक नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझसे बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कौन बात कर रही हैं? तो हाँ जी, मुझे ये अपने बेटे के लिए पूछना है कि वो कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, उसे कामयाबी होगी इसमें या नहीं। दूसरा ये कि अगर नहीं तो फिर वो कौन सा ऐसा काम करे, कारोबार करे जिसमें उसे कामयाबी मिल जाए। ये आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, मेरा बेटा है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद हसन।
मोहम्मद हसन, ठीक है। पहला सवाल क्या था इनका? इनका आपका सवाल ये है कि उन्होंने कंप्यूटर के एग्जाम्स दिए हुए हैं, वो नहीं कंप्यूटर में नहीं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है। कंपटीशन के एग्जाम्स दिए, ठीक है, इम्तिहानात। तो उसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं, और उन्हें कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, आप कुछ इस किस्म ये पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक, आप प्रोग्राम देखिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास दो सवालात हैं। एक लारैब साहिबा ने किया है अपनी वालिदा नसरीन के हवाले से, एक रिफत साहिबा ने मोहम्मद हसन अपने बेटे के हवाले से। तो कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जुमेरात का दिन, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, और इस्तिखारा और रूहानी इलाज और रूहानी रहनुमाई के हवाले से प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला और आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हमें दो कॉल्स मौसूल हुई थी। एक लारैब साहिबा की थी, लारैब जिन्होंने अपनी वालिदा नसरीन साहिबा के हवाले से पूछा था, जिन्हें शुगर और दिल का आर्ज़ा लाहक है। तो हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, आपने इस्तिखारा किया इनके हवाले नसरीन साहिबा के बारे में, क्या रहनुमाई मिली है, ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बेटा, आपने अपनी माँ साहिबा के बारे में दो बीमारियों का तस्करा किया और 2 बरस से इस तकालीफ का शिकार हैं। तो इस्तिखारे का जवाब तो ये कि ये सब कुदरती है, ठीक है, और इसका हल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत आसानी से हो सकता है, अल्लाह चाहेगा तो। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, हमने कुरान में शिफा नाज़िल फरमाई। तो एक तो ये कि आपका ताल्लुक़ कराची से है, तो हम जो है शुगर के लिए एक जड़ी बूटी देते हैं और दिल के आर्ज़े के लिए एक नुस्खा देते हैं जो तबई नुस्खा है। तो क्या ही अच्छा हो कि आपके घर का कोई फ़र्द मर्द हमारे पास सुबह 9 से लेके शाम 6-7 बजे तक अगर कोई मर्द आना चाहे तो वो आ सकते हैं मेरे पास, और अगर ख़ातून आना चाहती हैं तो वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आ सकती हैं। और हमसे मतलब यानी कि इनके लिए इलाज भी ले जाएँ और जड़ी बूटी भी हम दे देंगे इंशाअल्लाह। बकिया इस वक्त जो वजीफ़ा है वो ये है कि इनको कहें कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने बदम कर लिया करें। हदीस पाक में आता है कि फातिहतुल किताब शिफा मिन कुल्लि दाइन, सूरह फातिहा तमाम बीमारियों की शिफा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा माशाल्लाह। और इनके बाद एक और कॉलर थी फैसलाबाद से, रिफत साहिबा, जो कि अपने बेटे के बारे में परेशान थी। उन्होंने मुकाबले के इम्तिहानात दिए हुए हैं और वो उनकी कामयाबी के बारे में कुछ फ़िक्रमंद थी कि वो कामयाब होंगे कि नहीं, और अगर होते हैं तो, और नहीं होते तो भी उन्हें कौन सा शोबा चुनना चाहिए, या इनको वो कौन सा जो शोबा है वो रास आएगा। कुछ इस तरह का सवाल था उनका। देखें, ये तो तयशुदा बात है कि कोई काम कर लिया जाए तो उसके बारे में 2 गुमान होते हैं, कामयाबी नाकामी। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ुद का फरमान है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है वैसा मुझे पाता है। बेशक। तो आप माँ साहिबा हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो बेटे को ये मौका दिया है, इन्हें कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। आमीन। इसके बाद कारोबार का मामला जो है ना, इसमें आप हमें बताएंगे ना कि ये मेरा बेटा ये कारोबार करना चाहता है तो होगा इस्तिखारा। इस वक्त तो इस्तिखारा तो करना मुमकिन है, कारोबार तो 1000 की तरह के हैं, ठीक है ना। अलबत्ता ये है कि आपको इस बच्चे की खुशी मिले, उसके लिए अल्लाह ताला के 2 नाम, एक है या मौती या शकूरो। मौती माने अता करने वाले ज़ात, मीम एंड ता या मौती या शकूरो, या मौती या शकूरो, या मौती या शकूरो। ये 2 नाम अल्लाह ताला के 60 मरतबा हर नमाज कर पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। बाकी आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, अगर कोई इसके लिए तावीज़ात चाहिए हो तो फैसलाबाद में तकरीबन हमारे 30 से ज़्यादा मकामात हैं सैलानी के, तो वहाँ रब्ता कर सकते हैं। सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, आप इस नंबर पे रब्ता करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, आप सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को
ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے مطلب کرتے دھرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک سوال جو میں نے خود ایک تنقید سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے سنی ہے, اگر اجازت ہو تو میں آپ سے وہ بات یہاں کر سکتا ہوں. کیا اس میں حرج کیا ہے؟ تنقید یہ ہے لوگوں کا, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے, کچھ لوگوں کہ سیلانی والوں نے لوگوں کو مفت کھانے کی عادت ڈال دی ہے, انہیں کام نہ کرنے کی عادت ڈال دی ہے. اب انہیں مفت میں کھانا ملتا ہے, ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, تو لوگوں کی اس طرح عادات خراب ہو رہی ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں یہ بات ہے نا, اس کے درست ہونے میں 20% بات صحیح ہے, یعنی 80% بات میں وزن نہیں ہے. اس میں تو ایسا تو ہو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے گھر والوں کا احساس ہو, اپنی ذات کیسے ہو. تو ایسے لوگ تو دنیا میں رہیں گے, ہر جگہ پہ رہتے ہیں. صحیح ہے. اب جو دنیا منشیات استعمال کرتے ہیں لاپرواہی ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ہو جاتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ, دیکھیں ہمارے ہاں جو قیامت خیز مہنگائی ہے نا, اور جو چھوٹا طبقہ, آپ سیکورٹی گارڈ لے لیں, آپ پیون لے لیں, یہ جو ان کی تنخواہیں 15,000 18,000 روپے. آپ ہمارے ادارے میں جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی ہمارے دسترخوان ہیں نا, آپ کہیں بھی چلے جائیں, میں سب سے کہوں گا آپ کہیں چلے جائیں اور افراد گن لیں, 100 بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ کو 80 چہرے سے نظر آئیں گے جو محنتی ہیں, کام سے لنچ ٹائم میں کھانا کھانے آئے. تو بتائیے جو آدمی 15,000 روپے کما رہا ہے اور اس کی وقت کا گھر بھی کرائے کا ہے, آپ بھی دور سے رہا ہے, اس کے بس کا بھی کرایہ لگ رہا ہے, تو پھر وہ شخص بیچارہ مطلب یعنی کہ جو ہے وہ اگر 2 ٹائم کھانا یا 3 ٹائم کھانا, صبح ناشتہ کر لیتا ہے, دوپہر کھانا, رات 3 ٹائم کھانا کھا لیتا ہے, تو اس کے 150-200 تو بچ جاتے ہیں. پھر کھانا بھی کون سا, مٹن. صحیح. صبح پراٹھے بھی جو ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ بہترین کوکنگ آئل پر بنتے ہیں. دودھ بھی جو ہوتا ہے مطلب یعنی کہ جو باکس ہے نا آل پر وغیرہ, اس کا دودھ ہو رہا ہوتا ہے, مطلب ملک استعمال ہوتا ہے. چائے کی پتی بھی اچھی ہوتی ہے. تو اتنی قیمتی چیزوں کا اس کو بیچارہ اپنے گھر میں بھی میسر نہیں ہوتی. تو بتائیے 80% لوگوں کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے ناشتے میں یا دوپہر کھانے میں, رات میں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں جہاں بھی کوئی کفارے کی بات آتی ہے تو کہا کتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤ, 60 فقیروں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کی تو دعوت خود قرآن پاک اللہ تعالیٰ بھی عطا فرما رہا ہے. اچھا اگر کسی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ 60 مسکینوں کہاں سے لائے گا؟ کھانا تو کھلانا پڑے گا. بالکل کھانا کھلانا پڑے گا. اور اس کا بڑا اجر اور بڑی ایک بڑائی بتائی گئی ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں, کسی تک کھانا پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے, یہ تو اچھا سوال کر لیا. اب یہ سوال, اس کا جواب سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, ایک نوالا فرمایا یا ایک کھانا فرمایا, 2 باتیں. کہ کسی مسلمان نے کسی کو ایک نوالا کھلایا یا ایک وقت کا کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی بخشش کر دے گا. 3 آدمی کی. کون سی؟ ایک جس کا پیسہ ہے, اوکے, ایک جس نے پکایا ہے, اور ایک جس نے فقیر کے منہ تک پہنچایا. واہ. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اس نے ہمارے خدام کو بھی محروم نہیں کیا. خدام جو آدمی لے کے گیا کھانا دینے کے لیے, تو دیکھیں نا پیسہ لگانے والے کی محنت ہے, صحیح. اچھا کھانا پکانے والے کی محنت ہے, لیکن خادم کا تو کام ختم کر, اس کو کہو پانی پلاؤ, پانی پلائے گا. تو آقا فرماتے ہیں کہ خدام کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا. واہ سبحان اللہ. یعنی کہ فعل اچھا ہے تو اس میں جتنے لوگ شامل ہیں سب کو رب نے نوازا. 3 ایک کھانا, ایک یا تو یوں فرمایا نوالا یا یوں فرمایا ایک کھانا. تو ایک کھانا میں آپ 2 روٹی ہو گئی نا, تو آپ 2 روٹی کے ذریعے 3 آدمی بخشے جا رہے ہیں. ایک جس نے پیسہ لگایا, ایک وہ جو پکا رہا ہے, اور ایک جو کھلا رہا ہے. مگر اس میں دیکھیں افضل اس میں یہ بھی ہے جہاں تک میرا علم ہے, وہ تصحیح کیجیے گا, سب سے افضل یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ کھانا کھلائیں جو خود کھا رہے ہیں. یہ تو مطلق اسلام میں فرما دے, مطلق کہ مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے, دوسروں کے لیے وہ پسند کرے, وہی اصل مومن ہے. بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے, اور اسی حوالے سے کچھ سوالات آج اور بھی باقی ہیں, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی سر, محمد شفیق عارف والا سے بات کر رہا ہوں. عارف والا سے. محمد شفیق صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں میرا شفیق چھوٹا صاحب؟ بھائی ہے محمد سلیم, اس کی شادی کا مسئلہ ہے. کافی جگہ میں نے دیکھا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے. محمد سلیم والے سے. تو اچھا, اس کی شادی کو مطلب رشتہ طے نہیں ہو پا رہا. جی ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ہم پروگرام کے بالکل اگلے حصے میں جیسے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اچھا, کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ لوگوں کو کھانا ہی کھلاتا ہے؟ یہی بڑا اچھا سوال ہے.
देखिए, जब हमने ये ट्रस्ट शुरू किया था ना, हमने किया, हमसे अल्लाह ने करवाया था। तो हमारी ज़बान पर एक जुमला आया था, वो जुमला ये था कि या अल्लाह, हम तेरे बंदों की पैदाइश से लेकर मौत तक हर शोबे में खिदमत करेंगे, हर शोबे में। अच्छा, अब उसका नूर ये है कि आज आप, मैंने कई फोरम पर ये सवाल किया है कि मुझसे आप सवाल करें कि भाई क्या ये काम आप करते हैं, तो या तो इंशाल्लाह ये कहूँगा कि हम ये कर रहे हैं, या फिर ये कहूँगा कि हम ये काम खुद नहीं कर रहे, आउटसोर्स चले जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए अब कोई ऐसा शोबा है नहीं ज़िंदगी में जो सैलानी ना कर रहा हो। अब किस किस का नाम लेंगे आप, बोले आप? नहीं, मसलन क्या पानी के नौकरियों के हवाले से, उनको कोई हुनर सिखाने के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, मतलब किस शोबा, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कितने शोबे हैं? एक 63 तो नाम है, 63 इसलिए रखे हमने शोबे के, हमारे आका की उम्र मुबारक 63 साल। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग, ये बुनियादी काम है। देखें, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के ततीमे पर मार के, बदर की मुशरिकीन में से जो हुनरमंद थे, जी हाँ, मुसलमानों को हुनरमंदी के लिए उनको दे दिया कि वो सिखाएं इनको। जो पढ़े लिखे थे मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाएं। जो जंगी कैदी थे उनको ठीक है इस काम पे लगाया कि हमारे आका ने कि जो वो हुनरमंद थे, हमारे लोगों को हुनर सिखाएं। जो पढ़े लिखे थे वो पढ़ना लिखना सिखाएं। तो ये पता चला कि ये सिखाना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेशक। हमारे यहाँ एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है गुलशन इकबाल में, इम्तियाज़ के बराबर में। वो उसमें क्या होता है, हम मतलब यानी कि लोगों को कटिंग, मास्टरिंग, ऑपरेटिंग और एडिटिंग सिखाते हैं। ठीक है। मर्दों को, औरतों को, लड़कों को, लड़कियों को, गूंगों को, बहरों को। और फिर क्या है, इसमें फैसिलिटी क्या कर देते हैं, इसका दौरान है 1.5 महीने का। इस दौरान बंदा जो है, ना उसकी माना कोई फ़ीस है, ना दाखिला फ़ीस है, बल्कि तकरीबन सारे लोग हैं ना दूर से आते हैं, कोई लांडी से आ रहा है, कोई मरीज से आ रहा है, तो उनको इस 45 दिन का आने जाने किराया भी हम देते हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह। और ये सबके लिए ओपन है? सबके लिए। अच्छा नहीं है, अच्छा, गूंगों के लिए ओपन। कॉलर ले लें इधर, प्रोड्यूसर तंग कर रहा है मुझे, कह रहा है ब्रेक पे जाना है हमने, कॉल तो फटाफट कॉलर लेते हैं, फिर यहीं से बात शुरू करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हलीमा बीबी हूँ, कराची से बोल रही हूँ। हलीमा साहिबा कराची से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या सवाल है हलीमा साहिबा आपका? जी, मुझे इस्तिखारा करवाना है। मेरा भाई है जुमा खान, उसका 1 साल गुजर गया, उसका मैदा खराब है और दवाई इलाज करा करा के वो सही नहीं हो रहा। ठीक है। वो बोलता है कि मुझे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, मेरे हाथ पाँव सुन हो जाते हैं, उसके दिल पर बोझ आता है, उसके दिमाग पर। भाई तू कहता है भैंस है, तू कहता है जादू टूना है, ये क्या मसला? ठीक है हलीमा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी हम एक वक्फे की तरफ, इलाज बता दें तो। ठीक है, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं और वापस आएंगे तो हम हज़रत बशीर फारूकी साहब से इसका रूहानी इलाज जो है वो जानेंगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं हज़रत बशीर फारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। आप दोस्तों का सवालात का सिलसिला जारी है, उनका रूहानी इलाज और इस्तिखारा से आप दोस्तों के सवालात का जवाब दिया जा रहा है। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, हलीमा साहिबा। उन्होंने कहा कि जुमा खान, उनके शौहर, उनकी तबीयत 1 साल से ख़राब है, मैदा ख़राब है, बुरे ख़यालात आते हैं, हाथ पांव सुन रहते हैं, इलाज करवा रहे हैं, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस्तिखारा इनका हो चुका है और पूछते हैं हज़रत बशीर फारूकी साहब से कि उनके इस्तिखारा में क्या आया और क्या रहनुमाई मिली है। जनाब, अच्छा, इनका जवाब तो के बाद एक जवाब और रह गया है, वो जो आरिफ वाला सर, आरिफ, ओ यस, मोहम्मद सलीम की शादी के हवाले से एक और। देखिए बहन, ये जो आपने जिनका तस्करा किया है, उनको बुरे ख्यालत वगैरह आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला की रहमत से ख़त्म हो जाएंगे। इसका तरीका है, हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला तावीज़ जो है हम देते हैं। आपका ताल्लुक़ भी कराची से है, और अगर न भी आना चाहें आप तो सैलानी वेलफेयर बहादराबाद के पते पर आप ख़त लिखें तो आपको तावीज़ घर पहुँच जाएगा। इस वक्त जो वजीफ़ा है वो ये है कि वो हर नमाज के बाद 31 मरतबा पढ़ लिया करें 3रा कलमा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये 31 मरतबा पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाह ये इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। बाकी ये है कि अगर आपसे हमसे तावीज़ वगैरह मंगाना चाहे तो मंगा लें। वैसे आज तो जुमेरात है, हम जुमेरात की रोज़ सैलानी मस्जिद में इशा के बाद दुआ भी करवाते हैं, और बहुत से लोग दूर से आते हैं कि हदीस पाक में आता है कि जुमेरात की रात को कोई दुआ रद्द नहीं होती। बिल्कुल सही। और सर मोहम्मद शफीक साहब के भाई मोहम्मद सलीम साहब के रिश्ते के हवाले से काफ़ी परेशान है वो, इनका भी जी शॉर्टली बता कोई दीजिए। रुकावट नहीं है इनके साथ, कुछ नहीं है। कोई रुकावट नहीं है। ये है कि मगरिब के बाद 2 रकत नफिल पढ़ें सलातुल हाजत के, और इसके बाद जो 100 मरतबा पढ़ें या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़, ये पढ़ के दुआ मांगे, इंशाल्लाह जल्दी रिश्ता हो जाएगा। ठीक है। और वक्त हमारे पास सिर्फ तक मुश्किल से 2 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो आप गूंगे बहरे जिन बच्चों को वो हुनर सिखा रहे होते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं? बेरोज़गारी वैसे ही इतनी ज़्यादा है, तो उनका क्या इसके बाद भी सैलानी उनका ज़रा मदद करता है, उनका बाजू पकड़ता है, या इस काबिल कर देता है कि वो खुद इस तूफान से लड़ सके? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मर्द हो या औरतें हों, लड़के हों या लड़कियों, गूंगे हो बहरे हों, इन सब के साथ ये है कि 45 दिन का कोर्स है, ये हम सिखाते हैं इनको, और इनका आने जाने का किराया भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इनको 18,000 की जॉब देना ये हमारी जिम्मेदारी है, लाजमी तौर पर। माशाल्लाह 18,000 तो कम से कम होते हैं, अब ओवर टाइम करें तो इनकी 20, 22, 30,000 तक बन जाते हैं। माशाल्लाह। तो कोई भी मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं कह सकता कि हमने आपको सीखा और आप तो जॉब तो दे नहीं रहे हो। अल्लाह ताला आपको अजर दे इस सारे काम का। मैं कल बाकी शोबों के बारे में भी जानूंगा, और ये बात है कि मुझे बिल्कुल बशीर फारूकी साहब ने कहीं से इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि आपने सैलानी के बारे में बात करनी है, मगर मैं खुद इस बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। और आज सिर्फ इसी वक्त हिसाब से सिर्फ ये बता दें कि सबसे अफजल वो एक दुआ कौन सी है जो हमारे लबों पे रहनी चाहिए? या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसी दुआ के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल बाकी के सवाल जो हैं वो 10 से 11 हज़रत बशीर फारूकी साहब की मौजूदगी में फिर से हम आप दोस्तों के अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।